Assalamualaikum. Assalamualaikum students. A very good morning to you all. Can you hear me? Is my voice clear? Okay, beta. Walaikum assalam. Why Abdul Rahman? Beta, check your device. My voice is clear. Tell me, beta. Beta, I am speaking louder. You have to check your device, beta. You have to check your device. Okay? Can you hear me all? Mariam Sania Hafsa, beta, tell me in your chat box, please. I'm speaking louder, beta. Okay, Mariam, thank you so much. Sania, beta, Sania and Abdurrahman, beta, check your devices. Walaikum assalam, Rumesa. Okay. Wait a minute, beta. Yes, wait a minute. Rumesa, I will tell you all about your questions and all about your papers. Don't you worry about it. Today, why, beta? Why you are confused, beta? Rumesa, what is the problem? Why are you so confused? Open your mic, beta. Beta, turn on your cameras. Only some students are here, a few students I can say. और आप सबको अपने कैमरास को ऑन करना है और बेटा जो भी बात है ना, जो भी क्यूरीज हैं अभी से पूछ लीजिए. Because if you are confused, then on the other hand I'm also worried about you all, because um, I think that when you are going to attempt your paper, I think that you people are not going to give the importance to your towards your instructions which are given at the top of the form. You know, you all are not giving the importance towards your instructions. जब तक आप इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ेंगे ना, उस वक्त तक आप फॉर्म को फॉलो नहीं कर सकेंगे, उसको सही तरह से अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे. इज इट क्लियर? जी रुमैसा, सबसे पहले आपसे ही स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? Better turn on your mic. This is the last chance and last class of this session. So you have to ask all the questions, all the confusions, beta. You can discuss with me. मिस मिस ये जो फाइनल टर्म पेपर है तो Yes, क्लास के टाइमिंग में कैसे होगा? मतलब मैं फिर क्लास से नहीं होंगी beta, class की timing. What do you mean? फिर आप लोगों ने ये देखा भेजा है ना कि वो क्लास टाइमिंग्स में होगा Beta, वो school मतलब hours timing में होगा, not class timing. Class timings are just 40 minutes. School timings आपसे बोला गया है, school timings के अंदर. And all the papers are going to upload according your subjects marks. If there will be the paper of 100 marks, then the time will be according to the marks. Is it clear? If the paper will be of like SPST, if the paper will be like 75 marks, then the time will be according to the marks. Is it clear? According to the marks as well as according to the फॉर्म. अगर आपके फॉर्म में जिस तरह का क्वेश्चन दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमने सोच समझ कर उसकी टाइमिंग रखी है, ड्यूरेशन रखी है
कि कितने मार्क्स का है तो कितने मिनट्स आपको देने हैं। इज इट क्लियर? और मैं फिर स्कूल की टाइमिंग क्या है? बेटा आपको नहीं पता स्कूल टाइमिंग्स क्या होती है? एक 8:30 से 12:30 तक। some papers will uploaded from I think all the papers will be uploaded at 8:30 sharp एंड मैंने आपको बताया कि आपके पेपर्स आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होंगे। जैसे आपका मैथ्स इंग्लिश वगैरह 100 मार्क्स का है तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको अच्छा खासा टाइम दिया जाएगा। और स्कूल टाइमिंग तो 2 o'clock तक 1:30 तक है। तो वी आर गोइंग टू इन्फॉर्म यू एवरीथिंग ऑन द गूगल क्लासरूम, डोंट यू वरी। मैं आपको भी बताती हूँ, आई एम टेलिंग यू ऑल कि हम आपको एक ब्रेकअप देंगे। ब्रेकअप मीन्स there will be written each and everything about your form. Is it clear? Suppose the form 1 will be uploaded at 8:30 sharp, then the if the form if I will talk about my subject, that if the form first form 1 will be having 30 MCQs, then I will give you the specific time of 35 or 40 minutes to attempt this form. Is it clear? So before your any paper, अगर यानी मंडे को आपका कोई भी पेपर है तो उससे पहले आपको फ्राइडे सैटरडे को एक ब्रेकअप आपके गूगल क्लासरूम पे उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के क्लासरूम पे अपलोड कर देंगी टीचर, जिसमें वो आपको बताएंगे कि टोटल फॉर्म्स हाउ मेनी फॉर्म्स आर देयर, हाउ मेनी फॉर्म्स विल बी देयर इन योर फाइनल टर्म एग्जाम, एंड हाउ many time we have to given you in the form, and how many forms are there। ठीक है, आपको बता दिया जाएगा क्लियरली उस ब्रेकअप के अंदर। आपका कौन सा पेपर है मुझे बताइए, मंडे को कौन सा पेपर है आपका? इंग्लिश लैंग्वेज का है। ओके, सो सपोज आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, सो योर टीचर विल बी अपलोडेड a breakup type thing on Google Classroom. Might be possible it will be uploaded tomorrow और नेक्स्ट डे टुमारो। ठीक है, फ्राइडे या सैटरडे को आपके गूगल क्लासरूम इंग्लिश लैंग्वेज के क्लासरूम पर एक ब्रेकअप अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें आपको टीचर बताएंगी कि हाउ मेनी फॉर्म्स विल बी अपलोडेड। ठीक है, और उनका ड्यूरेशन कितना होगा, उनके दरमियान गैप कितना आएगा, एक फॉर्म रिस्ट्रिक्ट होगा तो कितने मिनट्स का गैप आएगा, अगला कितने मिनट में अपलोड होगा, सब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप सामने रखिएगा, और कोई भी पेपर जब आप अटेम्प्ट करें तो जस्ट बी फोकस टूवर्ड्स योर फॉर्म एंड टाइमिंग। इज इट क्लियर? डोंट यू वरी अबाउट कि मिस कब रिस्ट्रिक्ट होगा, मिस अगला कब आएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछ के अपना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। आपका फॉर्म आप कुछ भी कह लें, आपका फॉर्म जो है वो गिवन टाइम पे स्पेसिफिक टाइम के बाद क्लोज हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो डोंट वेस्ट योर टाइम। इसी वजह से आपको वो ब्रेकअप दिया जा रहा है। और जैसे 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 आपका आई थिंक पीएसटी का शायद 7 और 8 जून को है, ठीक है, then I will give you the breakup before your paper, before 1 day before or 2 day before I will uploaded the specific uh, जो भी आपको मैंने उसके बारे में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देनी है वो आपको उस पर मैं अपलोड कर दूंगी कि फॉर्म कितने हैं, और वैसे तो मैं बुक पर बता भी चुकी हूँ। इज इट क्लियर? एनी अदर क्वेश्चन अब्दुल रहमान, समझ में आया आपको? और मैं फिर बीच में ब्रेक नहीं मिलेगी क्या? मिलेगी ना बेटा, सब आपको बताएंगे, बट वो ब्रेक नहीं होगी कि आप समझें कि कोई हाफ एन आवर की ब्रेक हो जाएगी, जस्ट 5 मिनट्स की ब्रेक होगी दरमियान में। ठीक है, क्योंकि आपका पेपर हो रहा है ना, उसमें क्लासेस थोड़ी हो रही है कि आपका ब्रेक लंबी चौड़ी ब्रेक मिल जाए। इज इट क्लियर? वी हैव टू कंप्लीट आवर फॉर्म्स आर स्पेसिफिक पेपर ऑन टाइम। इज इट क्लियर? तो हमें जब टाइम पर करना है तो वो सब सब इंफॉर्मेशन आपका, जैसे आपने मुझे बताया आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है मंडे को, तो फ्राइडे या सैटरडे को टीचर विल बी अपलोडेड अ ब्रेकअप टाइप थिंग ऑन गूगल क्लासरूम। ठीक है, उसमें वो आपको बता देंगी कि कितने फॉर्म अपलोड करेंगी, हाउ मच टाइम विल बी देयर इन स्पेसिफिक फॉर्म, इन वन फॉर्म, एंड कितना ब्रेक टाइम उसके दरमियान आएगा, कितना गैप आएगा। उन सारी चीज़ों को याद रखिएगा, और जो हालात मॉक में हो रहे थे वो नहीं होने चाहिए बेटा। बहुत सीरियसली इन और चीज़ों को
को लीजिए। और मतलब इररेलेवेंट क्वेश्चंस मत कीजिए कि फॉर्म कब आएगा, अगला है, मिस बस, मिस खत्म, मिस खत्म। ये मत कीजिएगा, आपकी अटेंशन भी डाइवर्ट होगी, टीचर की अटेंशन भी डाइवर्ट होगी। आपको सारी इंफॉर्मेशन 1-2 दिन पहले दे दी जाएगी। जी। मिस फिर स्कूल टाइमिंग तो 8:30 से 2:30 बजे तक है ना? बेटा दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम। बेटा अब्दुल रहमान, किस बात का कंफ्यूजन है? आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, बताइए। ना मिस फिर जो है वो, क्योंकि ट्रेवल्स लाइट जा सकती है ना कभी भी, तो फिर हम मतलब ये तो अटेंड। आपको पहले जब हमने इंस्ट्रक्शंस दी थी, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है ना, आपकी बात बिल्कुल ऑब्वियस है। उसके लिए आपको बैकअप में कुछ रखना पड़ेगा, आपको अपने मोबाइल्स वगैरह में क्रेडिट डाल के रखना पड़ेगा। कुछ बैकअप के लिए यूपीएस जनरेटर्स हैं तो उनको स्टैंड बाय रखना पड़ेगा, ताकि लाइट जाते ही उसको ऑन कर दिया जाए। और ये नहीं होगा कि जिस तरह से मॉक हैं तो आपको जस्ट 5-6 मिनट्स मिलते थे और आप सोचें कि अब जनरेटर ऑन करने में या मोबाइल ऑन करने में या कुछ भी अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप से कर रहे हैं तो हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन होने में टाइम लगेगा तो हमारा फॉर्म बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपका कोई भी फॉर्म, जैसे मेरे पास अगर इन केस आप बात करें तो पीएसटी में फर्स्ट फॉर्म विल बी हैविंग 30 एमसीक्यूज, देन आई विल गिव यू द 35 और 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स इनफ होती हैं, इनफ। You have to give in just 5 to 10 minutes to read the instructions. Then you have just 5 to 10 minutes to read the all the 30 MCQs very carefully and the options of the MCQs very carefully. After that, there will be much time to just click the right answer. Is it clear? अगर आप पहले 20 मिनट भी दे देते हैं इंस्ट्रक्शन पढ़ने में और एमसीक्यूज को एक बार गो थ्रू करने में, तो जस्ट आप फिर भी आपके पास 20 से 25 मिनट बचेंगे। उन मिनट्स में आपने जस्ट उनको क्लिक करना है। इज इट क्लियर? तो अगर इन केस खुदा ना खास्ता उसमें आपकी लाइट भी चली जाती है तो आपके पास जो भी बैकअप होगा आप उस पे मूव ऑन हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? जी। अच्छा, अब आप अपना माइक काइंडली ऑफ मत कीजिए और मुझे रुमैसा से पूछना है। रुमैसा, इज इट पॉसिबल that you may open your mic? Okay, Rumesa is not in the class. Okay, beta, any question? Any other question, beta? No question. Beta, 8 students are here and किसी को कोई question नहीं पूछना. Everything is clear in your mind. Any question about your subject, any question about any chapter, any topic, about your forms? No, Sania beta. अगर आपको लिखना भी है बेटा वन वर्ड आंसर, यू हैव टू राइट डाउन द आंसर इन अपर केस. You know what is the meaning of uppercase? You have to write down the answer in one word and in capital letters. But is it clear? Everything will be written in the instructions of the form. Okay, Sanya, if there will be the last paper, it's okay. I think the last paper will be there on 8th June. Is it clear? Yes, Mariam. All the letters in uppercase. And I have, if I will give you the one word answer, then I have to given the clear instructions at the top of that form, and I have written there and I have given there the example. Is it clear? Like I told you, mm, for example,
Okay, is it clear? Can you see? आपको सब अपर केस में लिखना है, बट आई हैवेंट गिव यू द एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन बिकॉज यू ऑल वर कंफ्यूज्ड इन द mock. Then I will give you uh, beta Rumesa. Rumesa is Rumesa here in the class? ओके रुमैसा, रुमैसा बेटा कोई मसला नहीं है, नहीं दिए तो आपने जो एमटीज दिए हैं, क्विजेज हैं, मॉक आर द प्रैक्टिस पेपर्स। सेम पैटर्न पे आपका फाइनल टर्म का पेपर होगा, एंड डोंट यू वरी अबाउट द स्पेसिफिक टाइम, वी हैव गिवन मच टाइम टू यू फॉर अटेम्प्टिंग स्पेसिफिक फॉर्म। ठीक है, किसी भी फॉर्म में आप ये मत सोचिए कि 5 से 6 मिनट होंगे, नहीं, आपका पेपर जितना लेंथी होगा उसी के अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट की आपकी टाइमिंग भी होगी। इज इट क्लियर? रुमैसा कुछ पूछिए, आपको क्या प्रॉब्लम है, अब आप मुझसे बात कीजिए, फिर जो मुझे इंस्ट्रक्शंस देनी है मैं आपको फिर उसके अकॉर्डिंग बताऊं। यस रुमैसा, टर्न ऑन योर माइक बेटा। बेटा टर्न ऑन योर कैमराज, अब्दुल रहमान टर्न ऑन योर कैमरा बेटा। बेटा हमजा, आप लोग टाइम के बारे में क्यों परेशान हो रहे हैं? वाई आर यू वरिड अबाउट योर टाइम? टीचर्स विल बी देयर एट एनी केस ऑफ प्रॉब्लम, टीचर्स विल बी देयर, एंड वी हैव गिवन यू मच टाइम। I repeat again and again that we have given you much time according your form. जब हम फॉर्म बना रहे हैं ना, तो हम उसमें देख रहे हैं कि हमने इतने एमसीक्यूज दिए हैं, तो हम आप सबके हवाले से आपकी पोजीशन पर सोच रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग सोच रहे हैं कि अगर स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करेंगे तो उन्हें कितना टाइम लगेगा। यस मरियम, ऑल द लेटर्स इन अपर केस, and no punctuations will be there, no commas, no full stops as well must be there, just the answer. और आंसर अगर 2 वर्ड्स पर जा रहा है तो इट्स ओके। फॉर एग्जांपल एनी क्वेश्चन, यू हैव टू राइट एनी आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन, कायदे आज़म, then कायदे आज़म will be written in upper case. For example, खुशहाल खान खटक, पामीर नॉट, ठीक है, ये सब आप अपर केस में ही लिखेंगे, दैट विल बी द वन वर्ड आंसर। ठीक है, उसके अलावा आपने साथ में कुछ नहीं लगाना, जैसे हिमालयाज है, द हिमालयाज, नो, जस्ट हिमालयाज। इज इट क्लियर? रुमैसा, एनी अदर क्वेश्चन? ऑब्वियसली एमटी के मार्क्स एंटर होंगे, ऐड होंगे उसमें। यस बेटा मरियम। Okay, beta. Now listen me carefully. We are going to upload today, I think so. We are going to upload on Google Classrooms your home assignments marks, your CT 3 and 4, and MT 3 and 4 marks. Is it clear? We are going to upload a list about list having your CT34, MT34, and home assignments plus winter vacations marks. Is it clear? So these marks will be uploaded on Google Classrooms at the end of the school timing, till at the end of the school timings. Is it clear? So you can see, you can uh, you can go through these list there as well. So the reason is that after your exams there must not be any type of the confusion from the student sides, from the teacher sides. Is it clear? So all the teachers are going to upload your all the marks
on Google Classrooms today. यस ऑब्वियसली बेटा हमजा, जब स्टडीज़ ख़त्म, क्लासेस ख़त्म, पेपर्स एंड, तो फिर थोड़ी बहुत तो होंगी ना। But now nowadays be focused towards your subject and towards your preparation, and don't think that the two chapters are there and we will prepare these chapters at the end, at we will prepare these chapters on 7 June. No, no, beta, that's not a good thing. You have to prepare your chapters, especially land and climate chapter is very complicated chapter, I can say. um, Especially from the page number 51 till 61 are you have to are most important pages. You have to learn very very carefully these uh, uh, these pages. Is it clear? So once again, I want to tell you some things, and beta, you can see the um, slides which are shown the chapter land and climate, and the starting topics of land and climate. If you want to ask anything, uh, then you can ask me anything your about your chapter. Is it clear? Open your books, turn on your cameras. Beta, no one is going to turning on my the camera. आप ये वाली बात नहीं सुनते. Turn on your cameras, बेटा. Thank you so much, हमजा. थोड़ा कैमरा नीचे कर लीजिए. Okay. All the students in other classes are turning on their cameras, but in 8th class students बिल्कुल इस चीज़ को फॉलो नहीं करते. Okay, here in the class, Hafsa Shehzad, Abdullah Alam, and Sheikh Mohammad Zaid and Zimil. Beta, 4 students are also here. Don't you have any type of question, any query? Beta, anything else? हमज़ा ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए, अब्दुल रहमान ने बहुत डिटेल में मुझसे पूछा, मरियम पूछ रही हैं, रुमैसा पूछ रही हैं, सानिया पूछ रही हैं. बेटा, आप में से किसी को कुछ नहीं पूछना. ये मत सोचिए कि पेपर वाले दिन कोई आपको फिर इस तरह से होगा. उस दिन जस्ट पेपर की बात होगी, और वो भी जो नेसेसरी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी. Today Fatma is not here, beta. I want to discuss you one MCQ which I have given you in the second mock, and sorry, MCQ, I think true false. In true false, I have given you line from the chapter land and climate, and pages were from page number 56. Open your books, beta. Open your books, please. Page 56. And you people said that, Mariam, open your book. And you people said, most of the students said, Miss, this mm, specific sentence shows the wrong answer. And what is the right answer? And I will tell you that during my exam, during the uploading the form, I will not tell you the right or wrong answer. So listen carefully. Don't ask any type of this type of question on in final term. Is it clear? Do your work. जो चीज़ आपको समझ में आती है उसको क्लिक कीजिए. हाँ, अगर किसी सेंटेंस का मीनिंग समझ में नहीं आता तो हम उससे ड्यूरिंग द एग्ज़ाम पूछ सकते हैं. बट हमने बहुत केयरफुली सब कुछ किया है, इसलिए टीचर को मत उस टाइम इस तरह से मत क्वेश्चन किया करें कि मिस देखें, चेक करें, ये गलत है. ठीक है, आप कह सकते हैं, हम भी रॉन्ग हो सकते हैं, but beta, be focused towards your sentence. So look at your book, the upper Indus plain. The topic is the upper Indus plain. Is it clear? So I have given you, look at this topic, the third last line. I have given you one of the greatest canal system of the world is operating in the upper Indus plain. I don't know whether it is the MCQ or true fall. I think it is the true false. It is in true fall, which produces. बस मैंने यहाँ तक दिया था, ठीक है.
one of the greatest canal system of the world is operating in the upper Indus plain. So I have given you, I have changed the word world into country. Is it clear? Beta, third line, Mariam, can you see? अपर इंडस प्लेन्स का पैराग्राफ जहाँ एंड हो रहा है, उसकी थर्ड लास्ट लाइन है, देयर फोर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैनाल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? अब मैंने इसमें क्या चेंज किया? I have changed in this paragraph, in this sentence, just the world into country. तो कंट्री की तो नहीं है ना, कंट्री का तो ऑब्वियसली जब दुनिया की सबसे बड़ी है तो मुल्क का भी सबसे बड़ा होगा, बट द राइट थिंग इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैनाल सिस्टम. वन ऑफ द का मतलब होता है कि बहुत सारे कैनाल सिस्टम्स हैं दुनिया में, और उनमें से ग्रेटेस्ट कैनाल सिस्टम जो है वो पाकिस्तान का है. इज इट क्लियर? और मैंने उसको थोड़ा सा वर्ल्ड के वर्ड को चेंज करके कंट्री में कर दिया था. इज इट क्लियर? From page 56, topic the upper Indus plain, third last line. Page 56, topic upper Indus plain and third last line. Beta, you can say anything in your chat box now. आप बात तो कर नहीं रहे, ऑन भी नहीं कर रहे कैमरास, बहुत कम स्टूडेंट्स ने ऑन किए. ओके रुमेसा, समझ में आ गया? तो बेटा रुमेसा, डोंट बी कंफ्यूज्ड. आई टोल्ड यू ऑल दैट page 51 till page 50 61 are the most important pages. ठीक है? जो सारा कहते हैं ना कि इस चैप्टर का जो निचोड़ है वो यहीं पर है. Is it clear? Because we are going through the chapter land and climate of Pakistan, and land and climate में दुनिया में सबसे ज़्यादा important चीज़ क्या होती है? Physical features and climate of Pakistan. Is it clear? So as I told you that there will be there are two chapters in your syllabus, and I have given in the better listen very carefully. बेटा वैसे तो सब कुछ ही इम्पोर्टेंट है मरियम, बट पेज 51 टिल 61 आर मोस्ट इम्पोर्टेंट. और वो क्यों इम्पोर्टेंट है मैं अभी आपको बताती हूँ. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि वो पेजेस क्यों इम्पोर्टेंट हैं. देखिए, लिसन वेरी केयरफुली स्टूडेंट्स, लिसन वेरी केयरफुली. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, बट नो बडी बॉदर्ड टू अटेंड द क्लास. वेरी होपलेस चीज़ है ये, कि बहुत होपलेस चीज़ है कि आप लोगों की तरफ से वेरी होपलेस एटीट्यूड from the student side. There are so many students in the three sections, and just the um, 10 students are attending the class. Anyways, well done all of you कि आप सब आए, आपने क्लास में बात की, और that lecture will be this session will be very helpful to you in your learning, in your attempting the final term paper. So I'm telling you that listen very carefully beta. I will upload the breakup type thing on Google Classroom at 1 day or 2 day before your पेपर. ठीक है, अब मैं अपनी बात, सारी बात को एक बार दोबारा से सम अप कर रही हूँ. सो लिसन वेरी केयरफुली. So I will upload the breakup 1 day or 2 day before your paper. Is it clear? And in this breakup, I will tell you how many forms are there, or how many forms will be there in your paper, and how much time I have given you in a specific paper, and all these things, and how much the break will be there between the one and between uploading the one and second form. Is it clear? First and second form, and second and third form. Is it clear? So every information will be there. Go through all the informations so you may attempt your paper easily. और आप ये ना करें कि उस टाइम आप मुझसे क्वेश्चंस पूछने में अपना टाइम वेस्ट करें, मिस और फॉर्म है, मिस और है, ये मत पूछिएगा. ठीक है? तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी. हमारा पेपर लास्ट में है, तो ऑब्वियसली उससे पहले आप बहुत सारे पेपर्स अटेम्प्ट कर चुके होंगे, तो आपके पास आपको वो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई होगी, कोई ऐसा मसला नहीं होगा. ठीक है? तो
And today we are going to upload the our list, having your assignments plus winter vacation homework, and having CT3 MT3 or and MT3 and MT4. Is it clear? CT4 and MT4, all about your final terms, MTs, CTs, and assignments. Is it clear? सो तमाम असाइनमेंट्स के मार्क्स नहीं है, कुछ एवरेज जो है उसको करके हमने उसको अपलोड किया है। तो परेशान मत होइएगा कि हमने तो 10 असाइनमेंट दी थी, 20 दी थी, तो हमारे तो बहुत सारे मार्क्स हज़ारों के तादाद में आने चाहिए, ऐसी बात नहीं होगी। इज़ इट क्लियर? सो डोंट यू वरी, check your CTs and MTs marks carefully. Is it clear? So दो बातें हो गई। उसके बाद come towards our lecture and our chapters। ठीक है? Yes, yes, yes बेटा। विंटर वेकेशंस होमवर्क आर इंक्लूडेड इन द असाइनमेंट्स कॉलम। ठीक है, जो असाइनमेंट वाला कॉलम होगा ना, उसके अंदर ही असाइनमेंट के साथ आपके विंटर वेकेशन के मार्क्स ऐड ऑन कर दिए गए हैं, प्लस MT3 एंड MT4 मार्क्स एंड प्लस CT3 एंड CT4 मार्क्स। इज इट क्लियर? ओके। पहले क्लियरली उसको देखिएगा, मत गूगल क्लासरूम पे शुरू हो जाइएगा कि मतलब मिस ये नहीं है वो नहीं है, गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है, समझिएगा उस चीज़ को। Is it clear? Okay. Now, about your form. We will now मिस talk about your form. जी। मिस जो मॉक के मार्क्स है वो इंक्लूड नहीं होंगे फिर? वो बेटा आपको पहले ही बताया था। आप सबने प्लस मॉक में इतना क्लासरूम पर भी लिखा कि 0 out of 0, 0 out of 0, देन आई हैव आंसर्ड यू अकॉर्डिंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ मिस सर्वर दैट देयर मस्ट नॉट बी नेसेसरी, it is not necessary for you to get the marks. These are the practice forms, these are just practice forms, ये practice forms हैं। ठीक है, अब मैं बता दूं, आप अपना माइक ऑफ कीजिए बेटा। 7 minutes left and I have to tell you about the forms once again. I am going to upload the actually I have given you 3 forms. Is it clear? Total 3 forms will be there. But for in first form I have given you I think 30 or 35 MCQs. So specifically अगर आपका फॉर्म जो है वो 30 या 35 MCQs पे जा रहा है, then I will give you the specific time of 40 or 45 minutes। 30 to 45 मिनट्स का आपको टाइम भी मिलेगा, ठीक है। जितने आपके MCQs होंगे उसी के अकॉर्डिंग कुछ मिनट्स आई थिंक ज़्यादा ही मिलेंगे। इज इट क्लियर? तो मुझे बताइए कि पहले फॉर्म की बात समझ में आ गई? तो अब हमजा आप भी बताइए, और उमैसा, मच टाइम देयर ना? अब्दुल रहमान, बहुत टाइम है बेटा MCQs अटेम्प्ट करने, इतना ही टाइम आपको रिटर्न फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है। 30 मिनट्स ही मिलते हैं, ठीक है। Is it clear? Now, if the second form will be having true false, if there will be 20 true false, then I will give you, I think, 25 minutes। क्योंकि देखिए MCQs को पढ़ना है, पहला पेपर आपका MCQs का है, पहला फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म विल बी अबाउट MCQs, बट इन फर्स्ट फॉर्म you have to read the instructions which are given at the top of your form। so you have to, बेटा पहले मुझे सुन लीजिए अब्दुल रहमान, सुन लीजिए मुझे, टाइम नहीं बचेगा आपके क्वेश्चंस के लिए। मैं आपके क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, बट आप अभी लिखने को छोड़िए, आप मुझसे पहले बात मेरी सुनिए। देखिए MCQs को आपने आपने उसमें you have to read the instructions carefully, you have to read the MCQs, you have to read the 3 options of MCQs। तो आपको ज़्यादा टाइम चाहिए बेटा। अगर आप लिखते रहेंगे ना हमजा और अब्दुल रहमान, तो मैं आपको जवाब नहीं अब दूंगी। आप मेरी बात को इंटरप्ट कर रहे हैं, मैं आपको सब बता रही हूँ, सुन तो लीजिए पहले। जी, तो आपको टाइम चाहिए, यू हैव टू नीड मच टाइम टू रीड द MCQs, टू रीड द इंस्ट्रक्शंस इन फर्स्ट फॉर्म, यू टू रीड द ऑप्शंस इन फर्स्ट फॉर्म, every each and every MCQ having 3 options। Is it clear? So you need much time to read these things। so in first form, if I'm going to give you 30 or 35 MCQs that I have give you, then I will give you the time 35 minutes also।
Is it clear? 35 to 40 minutes also to attempt these things. But in second form, there will be true false, and I think 20 true false will be there. So I have to give you 25 minutes. Suppose I am going to give you 20 true false, then I will give you 25 minutes, because you have to just click the true or false. Is it clear? तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. You may go through in the start of 10 minutes your true false very carefully. Then after that you have much time to click just true or false. Is it clear? सो दो फॉर्म्स क्लियर हो गए. मुझे जल्दी से रिस्पॉन्स दीजिए, क्योंकि वी हैव जस्ट 4 मिनट्स लेफ्ट. ठीक है. इन द थर्ड फॉर्म, अब जब मैं थर्ड फॉर्म आपको अपलोड करूंगी ना, MCQs, if there will be 30 MCQs, then 30 marks will be there. If there will be 20 true false, 20 marks will be there. Is it clear? So now in the third form, I will give you the three sections. Is it clear? Third form will be from the topic physical features and land and climate of the Pakistan specifically. लर्न वेरी केयरफुली. ठीक है. एक एक लाइन पढ़िए, एक एक लाइन पढ़िए, उसकी एक एक लाइन को अंडरलाइन कीजिए. जिस तरह से मैंने आपको कॉलम मैचिंग दिया था, कॉलम मैचिंग को देखिए कि कौन से वर्ड के साथ कौन से एरिया को मैं कॉलम मैच में दे सकती हूँ. इज इट क्लियर? सो थर्ड फॉर्म में आपका क्या होगा? कॉलम मैचिंग होगी. इज इट क्लियर? थर्ड फॉर्म में टोटल 75 मार्क्स का पेपर है आपका. तो थर्ड फॉर्म में 3 सेक्शंस होंगे, 3 सेक्शंस में कॉलम मैचिंग होगी. इज इट क्लियर? तीनों में ही कॉलम मैचिंग होगी. 5 कॉलम मैचिंग, 5 कॉलम मैचिंग, 5 कॉलम मैचिंग. ठीक है. हैविंग 15 मार्क्स. इज इट क्लियर? तो आपके, सॉरी मैंने स्टार्ट में आपको बोला 3 फॉर्म्स होंगे, 4 फॉर्म्स विल बी देयर, 4 फॉर्म्स विल बी देयर. आई हैव मिस्टेक देयर. So I will correct you that 4 forms will be there. Third form will be having a column matching. Is it clear? And then fourth form having also 3 sections, which is specifically from column matching B, and third and fourth form will be from physical features and land and climate of Pakistan. Physical features of Pakistan and climate of Pakistan specifically. ठीक है. तो क्लाइमेट, फिजिकल फीचर्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनको देखिए. और फोर्थ फॉर्म जो होगा उसके 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, बी एंड सी. फर्स्ट सेक्शन, और ये एमसीक्यूज बेस्ड होगा. सेंटेंसेस होंगे, उनकी 3 ऑप्शंस होगी. आपको राइट लोकेशन को दूसरी लोकेशन के साथ मैच करना है. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? यानी फोर्थ फॉर्म आपका 3 पोर्शंस पर होगा, ए, बी एंड सी, एंड उसका टॉपिक होगा आइडेंटिफिकेशन. इज इट क्लियर? आइडेंटिफिकेशन पहला टॉपिक होगा. जो सेक्शन ए होगा 4 फॉर्म का, उसका पहला टॉपिक होगा और उसका क्वेश्चन होगा आइडेंटिफाई द माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज ऑफ पाकिस्तान. ठीक है. उसमें 5 आइडेंटिफिकेशंस होंगी, यानी पूरा सेंटेंस लिखा होगा. और जैसे आप एमसीक्यूज के लिए 3 ऑप्शंस पढ़ते हैं, राइट ऑप्शन पढ़ के आपको राइट ऑप्शन पे क्लिक करना है. फिर उसका बी पार्ट होगा, फोर्थ फॉर्म बी पार्ट. बी पार्ट में होगा आइडेंटिफाई द प्लेन्स एंड डेजर्ट्स ऑफ द स्पेसिफिक ऑफ द पाकिस्तान. ठीक है. फिर उसमें इसी तरह से सेंटेंसेस होंगे, एमसीक्यूज की ऑप्शंस होंगी, 5 सेंटेंसेस होंगे, उनको आप अच्छे से पढ़िएगा. राइट लोकेशन को राइट लोकेशन के साथ अपने दिल में, जहन में मैच कीजिएगा और उसे क्लिक कर दीजिएगा जैसे आप एमसीक्यूज करते हैं. फिर तीसरा भी इसी तरह होगा. तीसरे में होगा आइडेंटिफाई द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान. फिर जो सब टॉपिकल और ये वो हैं, उनके अंदर से आपको आइडेंटिफिकेशन करनी होगी. 5 सेंटेंसेस होंगे और उनकी 3 ऑप्शंस होंगी, जस्ट लाइक सेम लाइक एमसीक्यूज. इज इट क्लियर? तो 4 फॉर्म्स होंगे, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, कॉलम मैचिंग. कॉलम मैचिंग के 3 सेक्शंस होंगे, 5 5 कॉलम मैचिंग होंगे. इसी तरह से फोर्थ फॉर्म के भी 3 सेक्शंस होंगे. 1 मिनट लेफ्ट बेटा. एनी क्वेश्चन आप मुझे जल्दी से अब बता दीजिए. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स. इन द मीन वाइल अगर आपको कोई बात पढ़ते हुए ना समझ आए तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन बेटा सेपरेटली कीजिएगा और वेट कीजिएगा. ज़रूरी नहीं कि मैं आपका क्वेश्चन उसी वक्त देख सकूं. ठीक है. अदरवाइज मेरी इसी स्लाइड को दोबारा चलाकर देख लीजिएगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. जल्दी से मुझे रिस्पांस दीजिए बेटा. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स. बी केयरफुल और बी रेडी. और बहुत 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 ज़्यादा सोच समझ के लैंड एंड क्लाइमेट वाले चैप्टर को पढ़िए. हर छोटी छोटी चीज़ को अंडरलाइन कीजिए. एवरीथिंग इज क्लियर? राइट डाउन बेटा इन द चैट बॉक्स.